here we start. Now we are going to study about today. It's the halogen derivative. Okay, it's a part of organic chemistry, and this is very small but interesting part. Okay, halogen is very easy to understand. What we are going to study around the halogen derivatives here. So derivatives क्या है देखेंगे अभी. So what is halogen पहले? Halogen का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन. दे आर फ्रॉम द ग्रुप 70. कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? 70 ग्रुप में बिलोंग करके जस्ट 18 से पहले. सो ऑब्वियसली अगर मैं क्लोरीन उठाऊं तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. और उसको कितना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे रिक्वायर टू कंप्लीट द ऑक्टेट? ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन. So they are highly interactive. Okay, so this is the first thing that we have understood. Then when you talk about the halogen derivatives, okay, derivatives का मतलब क्या है? कहाँ पे वो अटैच होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CH3, CH2, CH2, Cl. अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3. हम यहाँ से काउंट करेंगे. ओके, सो 3. सो इट विल बी 1 क्लोरो, tell me, propane, right? 1 chloropropane should be there. So this is what? Alkyl derivative. It attached to the alkyl chain, so it's called alkyl derivative. Suppose similarly it's attached to the aryl group. Aryl group means what? A benzene ring, and it's attached to this. Suppose chlorine is attached, so it will be act like a chlorobenzene. Okay, so we have a alkyl attachment, we have a aryl attachment. Okay, so we have alkyl attachment, we have a aryl attachment. So अभी पढ़ेंगे halogen derivative with book के हिसाब से. ठीक है, चलो let's see. So let's share the screen and understand the concept. Okay, so whenever you see the halogen derivatives, ये आपका जो चैप्टर है वो देखो स्टार्ट जब भी हो रहा है तभी वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? It's telling us Br अटैच है ये किससे? ये क्या बोलेंगे? बेंजाइल ब्रोमाइड. This compound, this compound, this compound, they all are what? Halogen are attached to the group. So this is the halogens we are going to study. Okay, so let's study the classification of the halogen derivatives. सबको halogen पता चला? halogen क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर अटैच रहेगा अल्काइल और अराइल ग्रुप से उसको क्या बोलेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव. ओके, सो कौन से टाइप के हमारे पास? हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स. सी अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. Alkenes, carbon carbon double bond along with the halogen attached. Then halo alkynes, carbon carbon triple bond is there. Okay, and the haloarenes. What is arenes? Arenes का मतलब क्या होता है? The benzene ring is attached. So have you understood? Haloalkene, haloalkenes, alkynes, and the arenes. So these are the types. So here we study this. So first look at this. It's a haloalkane. The alkyl group is attached. X represent what? Your X represent your chlorine, bromine, iodine, or fluorine. That means halogen. Your X is always going to represent what? Halogen. See, this is haloalkane. Haloalkene is there. Haloalkyne, carbon carbon triple bond, and arene means what? Aromatic ring. Aromatic ring means what? Mostly the benzene ring is attached. Now next one. On the basis of the number of halogen atoms. Now, monohalogen atoms means what? Only one halogen is attached in the alkyl. See, look at this. Only one is attached. Here also one is attached. एक ही attached है ना वहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहैलोजन. अगर हम बात करेंगे डायहैलोजन कंपाउंड्स की, तो वहाँ पे कितने अटैच है? 1 और 2. सो एक ही मॉलिक्यूल को कितने अटैच है? 2 अटैच है. 1 एंड दिस इज 2. ओके, यहाँ पे कितने हैं? 3 अटैच है. सो दिस इज डायहैलोजन वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ ट्राइहैलोजन में क्या होगा? ऑब्वियसली 3 अटैच होंगे, और यहाँ पे देखो 3 अटैच है. तो अगर मैं ऐसे बात करूंगा, इफ आई राइटिंग दिस क्लोरीन, हियर इज क्लोरीन एंड हियर इज क्लोरीन. सो इसको नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6. सो इट विल बी 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन. ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? 1 2 4 ट्राई मींस क्या? 3 क्लोरीन अटैच है ना, तो इसका मतलब क्या? ट्राइक्लोरोबेंजीन इज गोइंग टू टॉक अबाउट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन. मोनोहैलोजन का मतलब क्या? कि एक बार एक ही अटैच है. मोनोहैलोजन का मतलब क्या? एक बार एक ही अटैच है. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, मोनोहैलोजन कंपाउंड्स आर द फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द हैलोजन. किसके ऊपर होता है? पोजीशन ऑफ द हैलोजन के ऊपर वो अटैच रहेगा. ठीक है, सो
ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द हैलोजन कौन अटैच रहेगा, मोनो हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा. सो फर्स्ट अल्काइल हैलाइड एंड हैलो अल्कीन. व्हाट यू आर स्टडीइंग? Alkyl halide. Alkyl means what? Alkane chain. Halo alkenes means what? Halo. See, alkyl halides या फिर आप उसको halo alkanes बोल सकते हैं. ठीक है. So now, halides or halo alkenes, the halogen atom is the bond sp3 hybridized. What is sp3 hybridized? 1s orbital and 3p orbitals. px, py and pz. These are the sp3 hybridized. Okay. तो एक शेयर अगर आप sp3 hybridized बोल रहे हो तो क्या रहेगा, वो ट्राइंगुलर शेप में रहेगा ना. I mean this shape में रहेगा. Look at this shape. It will be in this shape. Okay. Always remember this thing. एक ट्राइपॉड की तरह ये रहेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड. ऊपर की तरफ एक एटम, नीचे की तरफ 3 एटम्स झुके होंगे, राइट. तो उसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड. उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. लुक एट हियर. प्राइमरी हाइलाइट मतलब क्या? एक डायरेक्टली कार्बन को एक ही हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन उस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. लुक एट दिस, 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट. तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी. अगर एक ही इसको देखो, एक ही कार्बन को 2 कार्बन अटैच है और उसके ऊपर हैलोजन अटैच है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड. एंड एक ही कार्बन को 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, आर आर आर, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी हैलाइड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अलीसाइक्लिक हैलाइड. Allylic means what? Allylic means what? डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? allylic halides बोलेंगे. तो देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है. ओके, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे allylic halides. ओके. नाउ बेंजाइलिक halides. सी यहाँ पे क्या था? एक ही डबल बॉन्ड था, देयर इज नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड. लेकिन जब भी आप बात करोगे बेंजाइलिक हैलाइड की, वहां पे क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में क्या? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, ऐसा ना. उसको जब भी अटैच रहेगा कोई हैलाइड ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड. ओके, सो दिस आर द बेंजाइल हैलाइड्स ग्रुप. ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे का ग्रुप्स. वीनिसाइक्लिक हैलाइड, और इसको क्या बोलेंगे? विनाइल. व्हाट यू मीन बाय विनाइल? Vinylic. When you talk about the vinylic halide, in the vinylic halide, halogen atom is bonded to the sp2. क्यों अभी sp2? यहाँ पे देखो क्या था, हमेशा कार्बन x से अटैच था, जहाँ पे प्राइमरी था, मतलब एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच है, उसके बाद वो अटैच. लेकिन यहाँ आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में ये नहीं देखा कि कार्बन डायरेक्टली अटैच x से. ओके, सो यहाँ पे देखो sp2. क्यों? बिकॉज ये जो कार्बन है जो अटैच किसको है? हैलोजन से अटैच है, उसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड. ओके, उसी कार्बन के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे. ओके, सो दिस कार्बन हैज व्हाट? डबल बॉन्ड, एंड इट्स कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड. ये देखो, जैसे डबल बॉन्ड है उधर ही अटैच है यहाँ. अगर देखो ये ऐसे अटैच होता, अगर ये बेंजीन रिंग में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, नॉट बेंजीन रिंग, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लोरीन डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये विनाइलिक नहीं है. विनाइलिक कब होगा? जस्ट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, जब ये हैलोजन अटैच रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड. Okay, just mute yourself. I don't want any voice from your side. Now, haloalkyne. When you talk about the haloalkyne का मतलब क्या है? When a halogen atom is bonded to the sp. Look at this. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के हिसाब से और जेई के हिसाब से. अलाइलिक हैलाइड जो रहते हैं वो क्या रहेंगे? sp3. अगर यहाँ पे आपको CH2 और X का अटैचमेंट दिख रहा है, तो वो हमेशा sp3 रहेगा. ओके, जहां पे डबल बॉन्ड अटैच रहेगा वो क्या रहेगा? sp2 रहेगा. देखो, डबल बॉन्ड के बाजू में जस्ट है. और जहां पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और हैलोजन अटैच है, वहां पे sp रहेगा. ओनली s ऑर्बिटल एंड द p ऑर्बिटल विल बी इनटू द पिक्चर, प्लेन में रहेगी, राइट. तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्कीन. अल्काइन, काइन का मतलब क्या है? YNE, काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. नाउ अराइल हैलाइड्स और द हैलोअरीन्स. अभी देखो, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच क्या है? X. नाउ अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये बात करूँ कि यहाँ पे अटैच है और ये क्लोरीन है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है. क्यों नहीं है? जब तक उसके अंदर क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे? ऑल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं रहेंगे. यू कांट से इट इज अ यस बेंजीन रिंग, राइट. बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो ये उसको क्या बोलेंगे? अराइल. अराइल का मतलब होता है एरोमेटिक, जो क्या देंगे? स्मेल देंगे, और प्लीजेंट स्मेल देंगे, उसको बोलेंगे. ओके, IUPAC हम लोग बाद में देखेंगे. दिस पार्ट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. ओके, वी विल सी लेटर ऑन. अभी हम लोग बात करेंगे. किसका माइक ऑन है प्लीज बंद करो. आई डोंट वांट एनी वॉइस फ्रॉम योर. जिसका माइक है प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आई डोंट वांट एनी योर वॉइस. ठीक है, माइक बंद करो.
Okay, now let's talk about the reactions. Okay, synthesis method. Method of preparation of the alkyl halide. First method है अल्कोहल से. अभी ये सबसे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. This is a very important chapter. Okay, this is a very important point here from alcohol. अभी हमें क्या बनाना है? हमें हलाइड्स बनाना है. हमें हलाइड कहाँ से बनाने हैं? From अल्कोहल से बनाना. The most widely used method of the preparation of the alkyl halide, ये बहुत जगह यूज करते हैं method of preparation, is the replacement of the hydroxyl group of an alcohol by the halogen atom. Alcohols are available in, okay, so let's see where they are available. This is the first reaction. A variety of the hydroxyl group may be replaced by the halogen atom, halogen acid, phosphorus halides and thionyl chloride. So हमें क्या करना है? अल्कोहल से हमें हलाइड्स बनाना. ठीक है, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या बता रहा है. ओके, बाय यूजिंग द halogen acid like HCl, HBr, okay, that kind of, let's see, or hydrogen halide X. The condition for the reaction of alcohol with the halogen acid HX depend on the structure of the alcohol and particular dip. So देखो reaction देखो किसका ज्यादा है, tertiary, secondary and primary. इसकी reactivity ज्यादा है. मैं सिखाऊंगा ये, don't worry. Look at this, alcohol plus HX, suitable condition RX and H2O will be there. So now let's see, hydrogen chloride is used with a zinc chloride, that is called Gruce process. Zinc chloride के साथ अगर क्या यूज करोगे? HCl यूज करोगे. Let's see, now I'm sharing the whiteboard so it will be better to understand. Okay, now what we have to do is we have to prepare halogen with the help of whom? With the help of alcohol. अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? ROH. अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? ROH. अभी इसको कैसे हम लोग करेंगे? लुक एट दिस, दिस इज अल्कोहल. सो अगर मुझे ROH प्लस मैंने डाल दिया यहाँ पे HCl along with zinc, इसको क्या बोलेंगे? ग्रूस प्रोसेस. ग्रूस प्रोसेस. ओके, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. लुक एट दिस, आई एम यूजिंग द ब्लू पेन. ये जो OH है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको वाटर मॉलिक्यूल दे देगा. ओके, एंड दिस HCl विल गेट रिप्लेस ऑनटू दिस R. सो आपका बन जाएगा RCl. सो आपको क्या मिला है यहाँ पे से? हैलोजन मिल गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट जनरल रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन हम लोग ने देखा. तो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स. अगर मैं बात करूंगा CH3OH, दिस इज व्हाट अल्कोहल? दिस इज मिथाइल अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल है ये? मिथाइल अल्कोहल. प्लस क्या डालूंगा मैं? HCl डालूंगा अलॉन्ग विथ व्हाट? जिंक. और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रूस प्रोसेस. तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? कौन सा हैलोजन बना रहा हूँ? क्लोरो हैलोजन को प्रिपेयर कर रहा हूँ. नाउ क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? दिस OH विल रिएक्ट विद दिस H. क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दिस Cl विल बी अटैकिंग ऑन दिस पोजीशन. तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना. OH निकल जा रहा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमने वाटर मॉलिक्यूल बना के, और क्लोरीन क्या होगा? वहां पे अटैच होगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3Cl. तो क्या बनाइए? क्लोरो इथाइल. कैन यू राइट दिस? और क्या कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? मिथाइल क्लोराइड. ओके, सो दिस इज हैलो अल्कीन वी प्रिपेयर्ड. नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसको, लेट्स टॉक अबाउट CH3, CH2, CH2OH. दिस इज विच अल्कोहल? प्रोपाइल अल्कोहल. ये क्या है आपका? प्रोपाइल अल्कोहल. सेम सेम प्रोसेस में इसको मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ अलॉन्ग विद जिंक, और ये ग्रूस प्रोसेस है. तो सिमिलर वे हम क्या मिलेगा हमें? CH3, CH2, CH2 and Cl along with water. So this is very simple method. It's called as a Gruce process, और इसको क्या बोलते हैं? From the alcohol. So this is which process is this? This is called a substitution method. Substitution मतलब क्या हो रहा है? ऑलरेडी अल्कोहल वहां पे था, हमें क्या किया? अल्कोहल को हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया. So this is called substitution method. Okay, so let's come back to the own points. Now, so this is called a substitutable condition. use करने के बाद हमें ये alkyl halide. Okay, so we come to know that ये हमने first process कर दिया. ठीक है, किससे किया? अल्कोहल से.
अल्कोहल को किससे यूज किया, HCl के साथ। ओके हम HBr भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट मैंने एग्जांपल HCl का दिया यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है फिर से, दिस ROH HCl, हमने ये यूज किया। जिंक, you can write a zinc or you can write anhydrous ZnCl2, you can write anhydrous ZnCl2। okay so ये RCl मिला और आपको ये, so this is first reaction, हमने क्या प्रिपेयर किया, अल्कोहल से प्रिपेयर किया। okay so understand this। now next method, now constant boiling hydrobromic acid 48% डालना है, कितना 48 is used to prepare the alkyl bromide। हमने क्या बनाया अभी, अल्काइल क्लोराइड, दैट वाज अ ग्रूस प्रोसेस से बना दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड द ग्रूस प्रोसेस। नाउ कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48% इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द अल्काइल ब्रोमाइड। प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, व्हिच वन, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या है, देखो ROH अल्कोहल ही है ये, क्या किया, HBr यूज किया along with NaBr H2SO4 और हीट, क्या प्रोवाइड किया हमने, NaBr H2SO4 और हीट दिया, तभी हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला। Good yield of alkyl iodides may be obtained by heating the alcohol with the sodium और potassium। सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, गुड yield मिलेगा। नो ना, लेट्स सी दिस, क्या था ये, अल्कोहल प्लस HBr। ओके लेट मी शेयर द व्हाइट स्क्रीन। ओके सो अभी हम क्या बना रहे हैं, ब्रोमो के डेरिवेटिव बना रहे हैं, ब्रोमो हलाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, अगर मैं बात करूंगा CH3CH2OH, ओके किसके साथ रिएक्ट करूंगा, HBr के साथ रिएक्ट करूंगा। रिमेंबर वन थिंग, HCl के साथ रिएक्ट करना था तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना था, बट अभी हम लोग HBr के साथ रिएक्ट कर, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या लगेगा हमें, NaBH4। ओके सी लुक एट हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सी मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, ये वाला, दिस वन, NaBr H2SO4 और हीट देंगे तभी हमें जाके क्या प्रोडक्ट मिलेगा, विल गेट द सेम प्रोडक्ट लाइक दिस, व्हाटएवर वी गेट इन अर्लियर। सी NaBH along with H2SO4 एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए और यू आर प्रोवाइडिंग हीट। सो व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस प्रोसेस, ये H टूट के चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट, और हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, दिस Br will be attaching on this। तो ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, OH चला जा रहा है वहां से, तो इट्स गेटिंग सब्स्टिट्यूट। सो क्या बनेगा, CH3CH2Br। गॉट इट। चलो सिंपल में करते हैं अभी हम लोग। ओके CH3OH प्लस HBr, कैटलिस्ट कौन सी यूज करेंगे, मुझे करने पड़ेंगे HBH और H2SO4। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई हैव टू ऐड द Na, सोडियम कैटलिस्ट की तरह काम करता है यहाँ पे, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, सो दैट्स व्हाई कैटलिस्ट अलोंग विद द हीट शुड बी देयर। सो डायरेक्टली क्या बनेगा, CH3Br बन जाएगा अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन फ्रॉम adding the, or we are making the bromo halogens। okay now let's come back to the again the third thing। okay now by using the phosphorus halides, second क्या है, by using the phosphorus halide, phosphorus PCl3 PCl5, okay these are the phosphorus halide, phosphorus के साथ halide अगर react करेगा तो इसको phosphorus halide बनेगा। an alkyl halide may be prepared by the action of the phosphorus halide on the alcohol। सी हमें अल्कोहल से ही बनाना है, बिकॉज वाटर इज अ वेल वेल आई मीन OH इज अ व्हाट, वेल लिविंग ग्रुप, तो अगर वो OH चला जाएगा तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ना फटाफट, तो दैट्स व्हाई phosphorus tribromide and the triiodide are usually generated in situ। in situ का मतलब क्या है, आपको जैसे भूख लगती है तभी आप खाना बनाते हो कि खाना पहले ही बना के रखते हो, गरम गरम खाना ना आपको, तो इन सितु का मतलब क्या है, जैसे रिएक्शन करना है उसके पहले ही, मतलब 10-15 मिनट पहले ही आप इन सितु बना के रखो, मतलब प्रिपेयर करके रखो, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द एक्शन ऑफ द रेड फॉस्फोरस। ये याद रखो, रेड फॉस्फोरस ऑन द ब्रोमाइन एंड द आयोडीन रिस्पेक्टिव, रेड फॉस्फोरस यूज करेंगे हम। सो लुक एट दिस, ROH PX3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको 3 मॉलिक्यूल, और H3PO3 आपको क्या मिल रहा है, ये। So what is this? Let's study here in the whiteboard. So let me add this. अभी हम लोग किससे यूज कर रहे हैं, हेलोजन बना रहे हैं phosphorus से, phosphorus, which phosphorus, red phosphorus, which going to react with the bromine and iodide in situ। okay now let's see what I'm trying to say here। मैं यूज कर रहा हूँ CH3CH2OH। okay this is which alcohol, ethyl alcohol। ये कौन सा अल्कोहल है, ethyl अल्कोहल है। अभी द इन सितु है ना, इन सितु का मतलब क्या है, फॉस्फोरस, विच वन, रेड फॉस्फोरस मैंने डाला ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ, लेकिन फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 3 है यहाँ पे,
तो मैं क्या लिखूंगा, PbR3। ओके, PbR3 लिखा मैंने यहाँ पे। और जैसे मैंने ये लिखा, इट गोइंग टू रिएक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो PbR3 में क्या होगा, देखो, यू नीड अ 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, क्योंकि वो उसको क्या करना है, हमें बैलेंस कर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 Br along with H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा ये बाय प्रोडक्ट, phosphoric acid. For the balance purpose we need the 3 moles, okay, phosphoric acid. What we want, we want this, वो हमें मिल गया। ठीक है, ये PBR का मतलब था। ठीक है, नाउ लुक एट, कम बैक टू द पॉइंट अगेन, लेट मी शेयर दी थिंग्स अगेन। ओके, अभी हम लोग कर रहे हैं, देखो मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे, 3, तो PBR यूज किया तो 3 मॉलिक्यूल। अगर मैं PCl5 यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, PCl5, तो मेरा प्रोडक्ट तो सेम आएगा जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे बाय प्रोडक्ट क्या होंगे, जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, HCl and POCl3। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। अगर मैं यूज करूंगा CH3, ओके मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, CH3CH, अगर मैं यूज करूंगा PCl3, तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे। अभी PBR की जगह मैं PCl3 डाल रहा हूँ, सेम। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 Cl बनेगा along with H3PO4। ओके, नाउ अभी देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नाउ आई एम यूजिंग अल्कोहल ओनली, विच वन, CH3 CH2 OH, सेम अल्कोहल आई एम यूजिंग, बट अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूज PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज कर रहा हूँ। तो अभी देखो क्या हो गया, यहाँ पे 3 थे, तो ये बैलेंस करना इजी था, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, फॉस्फोरिक एसिड। बट यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो नाउ ये जो फॉस्फोरस है ये OH को लेके जाएगा, करेक्ट, और ये क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस होगा, तो क्या बनेगा ये देखो, इट विल बी बिकम CH3 CH2Cl। हमें ये प्रोडक्ट मिल गया अलॉन्ग विथ HCl एंड POCl2। तो एक्स्ट्रा क्लोरीन भी बचा है ना, देखो एक HCl यहाँ, 5 में से एक HCl गया यहाँ पे, और एक HCl गया, मतलब 2 चले गए, तो बचे कितने, 3 ना। तो 3 1, और ये 3 2 2, 3 मिलके अलग हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मिल गया आपको। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। सो लेट्स सी इसको बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं, देखते हैं इसको प्रॉपर्ली। सो वी विल सी द बैलेंस रिएक्शन हियर। ओके, देखो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दिया मैंने, यू डोंट हैव टू नीड टू बैलेंस इट बिकॉज़ ऑलरेडी बैलेंस। RCl, एक Cl यहाँ पे, 3 Cl3। ओके, सो यहाँ पे HCl अलॉन्ग विद 3 Cl, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था दिस वे, यहाँ पे Cl3 है। ओके, ये रिएक्शन पता चली आपको, मैं फिर से रिवाइज करूंगा जो पढ़ा है, डोंट वरी, जस्ट अभी अंडरस्टैंड करो कि क्या बोलते जा रहे हो। ओके, नाउ कम बैक टू द पॉइंट, बी क्या किया, फॉस्फोरिक एसिड यूज किया। नाउ वी आर यूजिंग C by using the thionyl chloride. This is very important reaction, but यहाँ पे क्या मिलता है हमें, प्योर प्रोडक्ट मिलता है। क्यों प्योर प्रोडक्ट मिलता है, आई विल टेल यू। सो thionyl chloride reacts with the straight chain primary alcohols, सिर्फ ये क्या होगा, straight chain से react करेगा, which gives the unarranged alkyl chloride. No need to put the extra effort for its separation, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कि देखो ना ये क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। अगर गैस लिबरेट हो रहा है तो उसको सेपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। सो ROH रिएक्ट करेगा SOCl2 का मतलब क्या है, थायोनिल क्लोराइड। क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ अलोंग विद द हीट रिएक्ट किया तो आपको SO2 और HCl क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। सो चलो इसको फिर से हम लोग देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके। ठीक है, आई एम शेयरिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड राइट नाउ। सो लुक एट दिस, आई एम एडिंग दी वन मोर पेज। नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैंने क्या किया, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ROH along with SOCl2, जैसे मैं रिएक्ट करूंगा आई विल गेट अ प्योर प्रोडक्ट। व्हाई प्योर प्रोडक्ट, जस्ट लेट मी नो, आई लेट यू नो। सो दिस, सी SO और एक O क्या बनेगा, SO2 बन जाएगा, विच इज अ गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। अलॉन्ग विथ HCl बन जाएगा, HCl का ये H बना और ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बन गया, ये भी गैस बन जाएगा। बचा क्या आपका RCl, तो ये सब इवेपोरेट हो जाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मैं लूंगा CH3OH, किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, SOCl2 के साथ, आई एम जस्ट गिविंग हीट, लिटिल बिट हीट, तो क्या बनेगा डायरेक्टली, राइट, SO2 गैस and HCl gas liberated along with CH3Cl. This is called methyl chloride. So this is very very important reaction.
नाउ चलो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। हम पढ़ रहे हैं क्या, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमने हैलोजन कहाँ से बनाया, अल्कोहल से बनाया। तो अगर मैं बात करूंगा अल्कोहल, तो अगर क्या किया, आर ओ एच। ठीक है, जस्ट लेट मी ऐड वन मोर पेज। फर्स्ट हमने कहाँ से बना रहे अल्कोहल, सॉरी हम लोग हैलोजन कहाँ से बना रहे हैं, अल्कोहल से बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप था उसमें हमने क्या यूज किया था, डायरेक्टली आर ओ एच। हमने क्या यूज किया था, HCl along with एनहाइड्रस ZnCl2। उसको क्या बोलेंगे, ग्रूव्स रिएक्शन बोलेंगे, इट्स कॉल्ड अ ग्रूव्स रिएक्शन। ओके, तो क्या बनेगा आपका RCl along with H2। उसी टाइम हमने क्या बनाया था, आर ओ एच, प्राइमरी अल्कोहल ही ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, HBr डाला था। HBr कब डालते हैं, जब भी प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, आई मीन कैटलिस्ट क्या रहेंगे, NaBH था वहां पे, along with H2SO4। कंडीशन एसिडिक होनी चाहिए और हीट दिया था, तो क्या बना था, RBr बना था along with H2। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हमने दिया, ए का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, बाय फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, नॉट ओनली फॉस्फोरस, रेड कलर फॉस्फोरस। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, देखो अभी फॉस्फोरस दो टाइप के होते हैं, लेट मी टॉक PX3 और PX5 के। तो ओके, फर्स्ट हमने किया, लेट मी राइट दिस फर्स्ट विद दी ब्लू पेन सो विल अंडरस्टैंड। ROH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, PCl3 रिएक्ट किया, तो मुझे तीन तीन मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे टू बैलेंस द रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा इसको, क्या बनेगा, RCl 3 मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बन गया यहाँ पे H3PO3। ठीक है, उसी टाइम हमने ROH के साथ डाला PCl5। अगर मैं क्या डालूंगा, PCl5 डालूंगा, पेंटाक्लोराइड डालूंगा, पेंटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डालूंगा। तो क्या मिलेंगे, ऑब्वियसली आई विल गेट दिस प्रोडक्ट RCl, बट अलॉन्ग विद HCl विल बी जनरेटेड along with POCl3 will be generated. So I'm getting this reaction. Okay, इसके बाद C वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या किया था हमने, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया था उसको, किसको, अल्कोहल को ही देख रहे हैं हम लोग, ROH प्लस SO2Cl। ओके, Na2Cl2, थायोनिल क्लोराइड है ये, रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, RCl along with SO2 gas, and that is liberated, plus HCl gas is liberated. Now, which is a very important method that we have done here? कौन सी important method हमने की? Let me write HCl again properly. Okay. So यहाँ पे क्या लिखा मैंने, HCl which is gas. Now tell me one thing, amongst A, B and C, which is a very very important process, C1. Why? Because यहाँ पे देखो आपको एक प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द प्योर प्रोडक्ट ओवर हियर। सो अगर आपको यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, SO2 और HCl क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, लिबरेट हो रहा है, एज इन द गैस फॉर्म में लिबरेट हो रहा है। जब ये गैस फॉर्म में लिबरेट होगा तो आपको इफोर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे ज्यादा टू प्रिपेयर द प्योर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑलरेडी क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बाकी के प्रोडक्ट देखो, आपको RCl देखो, RBr देखो, ये वाटर के साथ आ रहा है तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो बी आता है बाई फॉस्फोरस, रेड कलर फॉस्फोरस जो है, उसके साथ क्या होगा देखो, ROH प्लस 3PCl3 अलॉन्ग विथ व्हाट, 3RCl H3PO3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ROH PCl5, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर मेकिंग एसिड ओवर हियर, यहाँ पे भी एसिड बन रहा है और यहाँ पे भी एसिड बन रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के आपको इफोर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट, एक्सट्रैक्शन के क्या डालना पड़ेंगे, इफोर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो विच इज अ बेस्ट मेथड, यूजिंग द थायोनिल क्लोराइड। अगर आप थायोनिल क्लोराइड यूज करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, सो just give me 1 minute. Look at the process right now, what we have understood.
ओके, सो आपको ये प्रोसेस पता चला क्या सिखाया था अभी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट राइट नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने क्या किया, प्रिपेयर किया, अभी अल्कोहल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। So this is very very important part we are learning here with the alcohol. Now look at this. Can you recall this? CH4 Cl2, then ये HCl डालोगे, UV लाइट का मतलब क्या है, UV लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालोगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, CH3Cl बनेगा along with HCl. ओके ना, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी सेम होगा, HCl रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, ये एडिशन मेथड जाएगा क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे अटैक होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। वी हैव, लेट्स मी शेयर दी व्हाइट बोर्ड। ओके सो लुक एट दिस, CH3CH डबल बॉन्ड CH। ओके, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, HCl ऐड कर रहे हैं। अभी दिस इज एडिशन रिएक्शन, व्हाई एडिशन रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, H ब्रेक डाउन होगा, Cl ब्रेक डाउन, H यहाँ पे अटैच होगा और Cl यहाँ पे अटैच होगा, क्या बनेगा, CH3CH प्लस, सॉरी लेट मी राइट इट फर्स्ट अगेन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या डाला हमने, HCl डाला था, ठीक है। तो HCl ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, H जाएगा यहाँ पे और क्लोरीन जाएगा यहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन राइट, वेट, CH3CH, Cl अटैच हुआ सेकेंडरी पोजीशन पे और ये CH3 अटैच हुआ। नाउ दिस रिएक्शन फॉलो द रूल दैट्स कॉल्ड एज अ मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल का नाम है, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन जो है, प्रोटोनेटेड पार्ट ऑफ दी सब्स्टिट्यूट जो है या फिर एडिशन का पार्ट जो है, वो हमेशा जहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और जो ये इसका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, हेलोजन रेडिकल कहा जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इसलिए हमेशा ये क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्कोनिकॉफ रूल। और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है जो हमें बताता है कि प्रोडक्ट हमेशा प्राइमरी के ऊपर अटैक करेंगे। वी विल सी एवरीथिंग, वी विल सी राइट नाउ। बट यहाँ पे क्या आ गया, मार्कोनिकॉफ रूल आ गया, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को, कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, देखो यहाँ पे CH2 है ना, हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन वही चला गया, और जहां पे हाइड्रोजन कम है सेकेंडरी पोजीशन में, वहां पे क्लोरीन अटैच हो जाए। हैव यू अंडरस्टूड दिस, यस, ओके। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके नाउ नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स। So not carbohydrate but hydrocarbon. Alkyl halides are formed from the saturated as well as unsaturated. Saturated मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन। सो हम लोग मोनो और पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड को आज यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो हम लोग ऐड करेंगे। अभी जस्ट रिएक्शन देखा ना हमने यहाँ पे, लुक एट दिस रिएक्शन, दिस वन, या यहाँ ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, बिकॉज आपने HCl को ब्रेक किया, एक पार्ट यहाँ पे डाला, एक पार्ट यहाँ पे डाला, सो दिस इज एडिशन, दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल के साथ जो किया था वो क्या था, OH निकाल के वहां पे कुछ डाला था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग व्हाट ओवर हियर, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग द addition reaction. Okay, so let me add the another white page and let me share you the screen again. ठीक है। Now before they start they have given you this problem in the book. Okay, so what that, let's study for here. Okay, alkyl halides are formed the addition of the halogen halide, refer to the standard 11। ये standard 11 का point है, you have to refer it, I will tell you in the next rule। see मैंने मार्कोनिकॉफ रूल आपको बोला अभी जस्ट, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, व्हाट एवर इट इज एग्जैक्टली। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द सेशन। हाउ विल यू ऑब्टेन द 1 ब्रोमो 1 मिथाइल हेक्सेन फ्रॉम द अल्कीन, क्या बना, हाउ विल यू गेट ए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, किससे चाहिए, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन कौन सा है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया आपका ये अल्कीन ये कौन सा अल्कीन है, दिस इज नॉट अ टोल्यून। टोल्यून क्या होता है, CH3 अटैच होता है बेंजीन, दिस नॉट अ टोल्यून। यहाँ पे क्या है, 1 मिथाइल, देखो 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो क्या है ये
1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ओके साइक्लोहेक्सीन है, उसको HBr के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे एडिशन हो गया ना, H और Br टूट गया। तो देखो जहां पे क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन ज्यादा है वही हाइड्रोजन आएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे लेट मी शो यू विद द अनदर पेन, यू विल अंडरस्टैंड दैट। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है ब्रेक होके, यहाँ पे जा रहा है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड टूट गया, और Br का गया जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे अटैच हो गया, करेक्ट। नाउ अभी क्या करना है इसको, वी गेट दिस राइट, हमें ये फर्स्ट मेथड से मिल गया ये चीज, ठीक है, कि हमने HBr डाला डायरेक्टली इन दिस अल्किन। और भी है अल्किन, हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड। सी लेट मी इरेज इट एंड आई विल टेल यू अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सी दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड क्या था कि डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाए, HBr को ऐड कर, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, HBr को सिर्फ ऐड करना ना यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Br आ जाएगा। तो दोनों तरफ से हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट मेथड वी विल टॉक इन अ नेक्स्ट सेशन, जस्ट 1 सेकेंड।